Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स सोशल साइंस बुक वन का मॉड्यूल टू इंडिया नेचुरल इन्वायरमेंट रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट लेसन 14 पॉपुलेशन आर ग्रेटेस्ट रिसोर्स जो कि ज्योग्राफी का चैप्टर है। आज हम लोग इसे पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। Hello, dear students. Today we are going to read lesson 14, which is population, our greatest resource. So let's start. All of us here, many people saying that the population of India is a great problem. You also may be feeling the same. You may be aware that the population of India is more than a billion and it is still growing. It may overtake the population of China within the next couple of decades, eventually making India the most populous nation of the world. It is in this way the population is quite often seen as a liability, a major hindrance to development and quality of life of the people. But is it true? Let's think and understand. Has population not been an asset, a resource for the country today? India is considered as a leading nation in the world in terms of human power. One of the major contributory factors for this global standing has been the young, educated, and productive people of our country. They are contributing to the development of not only our country but many of the foreign countries also. In this context, population is an asset for the economy, the greatest resource of the country rather than a liability. In this lesson, you shall know how population of our country can be viewed as the greatest resource. जैसे कि हम लोगों ने सुन रखा है, ठीक है, हम लोगों ने क्या सुन रखा है कि जो लोग कहते हैं कि जो जनसंख्या है भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। आप लोगों ने भी ऐसा महसूस किया होगा, आप भी इसके प्रति जागरूक होंगे कि जो भारत का जनसंख्या है वो एक बिलियन से भी ऊपर है, बिलियन से ऊपर, एंड अभी तक ये स्टिल ग्रोइंग, मतलब ये अभी तक ग्रो कर रहा है और कुछ सालों में ये जो पॉपुलेशन है वो चाइना को ओवरटेक कर लेगा, हम लोग के कंट्री। और हम लोग का जो कंट्री है पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। और इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो जो पॉपुलेशन है वो एक लायबिलिटी के जैसा अगर देखते हैं तो एक हम लोग का सबसे बड़ा हिंड्रेंस है। मीन्स प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग के जो लोग हैं उनका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उनका जो डेवलपमेंट है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन क्या ये सही है कि जो पॉपुलेशन है वो हम लोग के लिए प्रॉब्लम है? चलिए हम लोग इसको पहले सोचते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। पॉपुलेशन को अगर हम लोग एसेट के रूप में ना देखें और हम इसे कंट्री के लिए एज अ रिसोर्स देखें तो क्या होगा। आज हम लोग का जो भारत है वो एक लीडिंग नेशन माना जाता है पूरे विश्व में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ह्यूमन पावर है और ये एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर्स है इस ग्लोबल स्टैंडिंग में कि हम लोग का जो देश है वहाँ पे यंग, एजुकेटेड एंड प्रोडक्टिव पीपल है। और ये लोग सिर्फ हम लोग के, ना सिर्फ हम लोग के देश में कंट्रीब्यूट कर रहे डेवलपमेंट में, बल्कि ये विदेशों को भी आगे डेवलपमेंट करने में हेल्प कर रहे हैं। और इस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग देखते हैं तो पॉपुलेशन हमारे इकोनॉमी के लिए एक एसेट के रूप में काम कर रहा है और हम लोग का जो ग्रेटेस्ट रिसोर्स है कंट्री का वो पॉपुलेशन है, ये लायबिलिटी नहीं है। इस लेसन में आप लोग जानिएगा कि कैसे जो जनसंख्या हमारे देश का वो हम लोग एज अ ग्रेटेस्ट रिसोर्स कैसे उसको देख सके। Population as a resource. Generally, we understand that population means a collection of people. Let us go through the meaning of population stated in the box below. This term has been defined differently in different contexts. You may find that the meaning of population stated in a science or biology textbook is different from how it has been used in a social science, geography, economics, or sociology textbooks. You will learn later on that in statistics, this term has yet another meaning. Will you like to find out what it is? You may do it by consulting books on statistics. However, in the present lesson, we will be using population to mean the collection of people living in a given geographic area or territory. This is how it is used in the census. The collection of people is seen and understood primarily in terms of number, but population is also considered as a resource, a human resource.
जनरली हम लोग क्या समझते हैं, जो पॉपुलेशन है उसमें हम लोग क्या जानते हैं कि जो पीपल का कलेक्शन है उसे हम लोग पॉपुलेशन बोलते हैं। चलिए हम लोग इसके जो पॉपुलेशन का जो मीनिंग्स है जो बॉक्स में दिया हुआ है उसकी ओर बढ़ते हैं। आप बॉक्स में जो पॉपुलेशन का मीनिंग दिया हुआ है आप उसको पढ़ो। और ये जो टर्म है वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग प्रकार से डिफाइन किया गया है। आप लोग देखोगे कि जो मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन है वो साइंस और बायोलॉजी के टेक्स्ट बुक में क्या है, ये कैसे डिफरेंट शो कर रहा है। एंड सोशल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी के टेक्स्ट बुक्स में ये अलग शो करता है। मीन्स पॉपुलेशन वही है लेकिन उसका डिफाइन करने का हर एक सब्जेक्ट में नजरिया अलग अलग है। आप बात ही पाओगे स्टैटिस्टिक्स के बारे में, तो आप देखोगे कि वहां पे एक अलग ही मीनिंग है पॉपुलेशन का। तो आपने फाइंड आउट किया कि ये क्या है। आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स के बुक तो पढ़े होंगे, मैथ्स में भी स्टैटिस्टिक्स होते हैं, तो मैथ्स में तो स्टैटिस्टिक्स तो पढ़े ही होंगे आप लोगों ने। और इन प्रेजेंट इस लेसन में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि जो पॉपुलेशन है उसका क्या मीन निकलता है, कि जो कलेक्शन ऑफ पीपल जो कि गिवन ज्योग्राफिक एरिया और टेरिटरी में रहते हैं, और हम लोग कैसे इसे सेंसस से यूज करते आ रहे हैं। जो पीपल का कलेक्शन है उसे हम लोग देखते हैं और प्राइमरी उसे समझने की कोशिश करते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर। लेकिन ये जो जनसंख्या है उसे हम लोग एज अ रिसोर्स मानते हैं। एज अ रिसोर्स क्या, एज अ ह्यूमन रिसोर्स मानते हैं। ओके, what is resource? It is something that can be used and reused. Let us look around the room. We find things like furniture, books, notebooks, pen, cups, and others. We consider them as our resources and use and reuse them in our daily life. Resource क्या है? ये कुछ ऐसा है जिसे हम लोग यूज करते हैं फिर से दोबारा रीयूज करते हैं। चलिए हम लोग अपने रूम में देखते हैं, तो हम लोग अपने रूम में बहुत सारी ऐसी चीजों को देखते हैं जैसे फर्नीचर, बुक्स, नोटबुक्स, पेन, कप्स और भी कई ऐसी चीजें हैं। और हम लोग उसे एज अ रिसोर्सेज कंसीडर करते हैं क्योंकि हम लोग उसे अपने डेली लाइफ में यूज और रीयूज करते रहते हैं। Now let us try to trace their origin. These are made out of the resources which we get from nature. The furniture is made from timber that we obtain from the forest. Books and notebooks are made from the wood pulp which comes from the forest. The pen is made up of plastic which is the byproduct of petroleum. The cup is made of clay found in the soil. These and many more things which are a part of our daily life are extracted, processed or manufactured from the natural resources. It is the people who with their physical and mental efforts convert the natural resources into various goods of utility. चलिए हम लोग जो भी ये चीजें उसके ओरिजिन को ट्रेस करते हैं। ये जो भी चीजें रिसोर्सेज वो हम लोग को नेचर से मिलता है। जो फर्नीचर है वो लकड़ियों से बनता है और जो लकड़ियां है वो कहाँ से आती है, जंगलों से आते हैं। बुक्स और जो नोटबुक्स हम लोग आज जो यूज कर रहे हैं वो वुड पल्प से बनता है, और ये वुड पल्प कहाँ से आते हैं, फॉरेस्ट से आते हैं। जो पेन हम लोग का बना हुआ प्लास्टिक से बना हुआ, प्लास्टिक कहाँ से आता है, ये पेट्रोलियम का बाय प्रोडक्ट है। कप मिट्टी से क्ले से बना हुआ, ये क्ले कहाँ से आता है, मिट्टी से, सॉइल से। और ये और भी ऐसी कई चीजें हैं जो हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, प्रोसेस किए जाते हैं, उसके बाद उनका मैन्युफैक्चरिंग होता है। और इन सब चीज का कहाँ से होता है, नेचुरल रिसोर्सेस से होता है। और ये ही पीपल है, ये लोग हैं जो अपने फिजिकल और मेंटल एफर्ट्स की वजह से जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको अलग अलग यूज करने की चीजों में कन्वर्ट करते हैं। Now move to next topic. If resources are things that are used and reused, how can population be considered a resource? We all know that the grains which are cultivated in the fields, the minerals that are mined, and the goods which are manufactured in factories are all produced by people. People of the country produce and develop various facilities and services to make their lives comfortable. The facilities, whether these are means of transport and communication, schools, colleges, hospitals, electricity producing units, infrastructure for irrigation, and others, play a significant role in the development of a country. अगर ये जो रिसोर्सेस, अगर कोई सामान होता है तो हम लोग उसे यूज करते हैं, रीयूज करते हैं। लेकिन जो पॉपुलेशन है वो एज अ रिसोर्स कैसे वर्क करता है, हम लोग सभी जानते हैं कि जो ग्रेन्स है उसको हम लोग फील्ड्स में कल्टीवेट करते हैं, मिनरल्स को हम लोग माइन करते हैं, और जो गुड्स है उसे हम लोग फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चर करते हैं। और ये सब किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, लोगों के द्वारा। ये जो देश के जो पीपल होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, डेवलप करते हैं बहुत सारे अलग अलग फैसिलिटीज और सर्विसेज को, ताकि जो लाइफ है वो हमारा कंफर्टेबल हो सके। ये जो फैसिलिटीज है
वो या तो हो सकता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशंस के रूप में, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि इरिगेशन के लिए हम लोग बनाते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे हम लोग चीजें बनाते हैं, और ये कंट्री के डेवलपमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है. For producing and developing all such facilities and converting them into useful resources, human beings play the role of the best resource. Without human beings, other resources cannot be developed and utilized properly. Therefore, the number as well as the quality of people collectively is the real and ultimate resource of a country. To be producing और developing जितने भी फैसिलिटीज हो रहे हैं उनको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं यूजफुल रिसोर्सेज में, और जो ह्यूमन बींग्स है वो एक रोल प्ले कर रहे हैं इसमें, और ये एक बेस्ट रिसोर्स बना रहे हैं. बिना ह्यूमन बींग्स के जो अदर रिसोर्सेज है हम लोग उसको ना ही डेवलप कर सकते हैं और ना ही अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं. इसलिए जो लोग हैं, क्वालिटी ऑफ पीपल कलेक्टिवली, वो हमारे रियल और अल्टीमेट रिसोर्स है कंट्री के. In view of the above, the sheer number of people, which is determined by census conducted at periodic intervals, may be a liability, but the qualitative population becomes the human capital of a country. For converting the number into capital, the country has to invest a lot in the form of improving the health and nutritional status of the people, their education and specialized training, and their overall quality of life. The investments for improving the quality of people made by the states as well as the society matter a lot. It is essential that every individual develops to the fullest capability and is engaged in the development process of the country. It is therefore important to understand that people as human resource are both an object of development and also a participant in development. As we discussed earlier, the number of people may not be called resource, but there are certain factors which convert these numbers into a useful resource. तो अगर हम लोगों ने जो भी चीजें ऊपर में देखी जिसमें बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने डिटरमाइन किया, और सेंसस से ये पीरियोडिक इंटरवल्स के टाइम पे वो लायबिलिटी हो सकते हैं, क्वालिटेटिव पॉपुलेशन हो सकते हैं, और ये हमारी कंट्री की ह्यूमन कैपिटल बन सकते हैं. और हम लोग ये जो नंबर जो हम लोग का है उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, कैपिटल में. और ये जो हमारा कंट्री है उसमें उसे इन्वेस्ट करना होगा अपने लोगों के हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, उनके न्यूट्रिशनल स्टेटस के इम्प्रूव करने के लिए, उनके एजुकेशन में, उनके स्पेशल ट्रेनिंग में, एंड जो भी ओवरऑल क्वालिटी है पूरे लाइफ का उसमें उनको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. और ये जो इन्वेस्टमेंट्स है वो से क्या होगा, लोगों की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आएगा, और इसके साथ में जो सोसाइटी है वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर लेगा. और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जितने भी इंडिविजुअल है, एक एक इंडिविजुअल उनको पूरी तरह से डेवलप किया जाए और वो कैपेबल हो सके, जिससे हमारे जो कंट्री का जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो अच्छे से हो सके. इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि जो पीपल है वो एक ह्यूमन रिसोर्स है, और ये क्या करते हैं, ये डेवलपमेंट करते हैं, साथ में डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट भी करते हैं. और जैसा हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है कि जो नंबर ऑफ पीपल है वो रिसोर्स नहीं है, लेकिन कुछ सर्टेन फैक्टर्स है जिसकी वजह से ये जो नंबर्स है वो कन्वर्ट होते हैं यूजफुल रिसोर्स में. Factors making population a human resource. What are the factors that influence the role of population as the human resource? You may infer from the above discussion that the education, health, and nutritional status of the people and their specialized training determine the quality of population as a human resource. But besides this, there are key socio-demographic factors that have significant impact on the role of population as a resource. These are distribution of population, growth of population, and population composition. We shall try to understand these three factors. Let us begin with distribution of population. तो कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो पॉपुलेशन को एज अ ह्यूमन रिसोर्स बनाने में इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है. आप लोगों ने अब डिस्कशन से क्या देखा कि जो एजुकेशन है, हेल्थ है, न्यूट्रिशनल स्टेटस है लोगों के, और उनका स्पेशल ट्रेनिंग, ये सब डिटरमाइन करता है पॉपुलेशन की क्वालिटी के ऊपर, और इन्हें एज अ ह्यूमन रिसोर्स वर्क करने में हेल्पफुल है. लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे की सोशियो डेमोग्राफिक फैक्टर्स भी है जिसका भी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ता है कि लोगों को एज अ रिसोर्स वो बनने में हेल्प करे.
और ये फैक्टर्स क्या है? फर्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, सेकंड क्या है? ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, एंड थर्ड क्या है? पॉपुलेशन कंपोजिशन। चलिए हम लोग इन तीनों फैक्टर्स के बारे में डिटेल से पढ़ने के लिए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, बट बिफोर, based on your understanding, try to solve in text questions 4.1. Distribution of population. You may be knowing that resources, whether natural or any other, are not evenly distributed. For example, natural resources like forest or iron ore or coal are not found evenly in the world and also within our own country. The same in the case with human resources, they are not evenly spread everywhere in the world and their numbers keep on changing. The spread of population over an area, may be in a state or the entire country, is known as the distribution of population. आप लोग जैसा कि जानते हैं कि जो रिसोर्सेज है, चाहे वो नेचुरल हो या फिर कोई भी हो, वो सब जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। एग्जाम्पल के लिए जो नेचुरल रिसोर्स है जैसे कि फॉरेस्ट या आयरन ओर हो गया, कोल हो गया, ये सब पूरे वर्ल्ड में हर जगह इक्वली नहीं पाया जाता है और इनफैक्ट ये हमारे कंट्री में भी यही स्थिति है कि सब जगह एक जैसा जो चीजें होती है वो एक जैसा नहीं होता है और सेम केस होता है ह्यूमन रिसोर्स में। ये भी सब जगह इवनली स्प्रेड नहीं है पूरे वर्ल्ड में और इनका जो नंबर्स है हमेशा चेंज होते रहता है। जो पॉपुलेशन का एक एरिया में जो स्प्रेड है, मे बी इन स्टेट या फिर इंटायर कंट्री में, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। You will find it very interesting when you look at the following map of India, figure 14.1. It shows how the population of India is spread across various states and union territories, UTS. This has been shown through dots. Each dot represents 5 lakh persons. As you see, in some states, the number of dots is less, even if the area is substantially large. It means that the population in these states is either widely spread or moderately spread. But in some other states, the dots are very close to one another, so close that those parts in the map look almost painted. In them, the spread of population is very dense. Let us prepare a list of sparsely populated, moderately populated and densely populated states and union territories of India. आप लोग ये पाओगे कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको लगेगा जब आप मैप ऑफ इंडिया विच इज गिवन इन 4.1 अगर आप उसे देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा कि इसमें जो भी पॉपुलेशन है इंडिया का वो वेरियस स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में किस प्रकार से है और ये हम लोग कैसे शो किए गए हैं इस मैप में डॉट्स के थ्रू। और एक डॉट 5 लाख पर्सन्स को रिप्रेजेंट करता है और जैसा कि आप देखने वाले हो कि कुछ स्टेट्स में जो नंबर ऑफ डॉट्स है वो लेस है, कम है, इवन वहाँ का जो एरिया है वो बड़ा है फिर भी वहाँ पे डॉट्स कम है। इसका मतलब क्या होगा कि जो पॉपुलेशन है वो स्टेट का या तो वो वाइडली स्प्रेड है या फिर मॉडरेटली स्प्रेड है। लेकिन अदर स्टेट्स भी हैं जहाँ पे जो डॉट्स है बहुत ही क्लोज है एक दूसरे के और ये जो क्लोज वाले जो पार्ट्स है मैप में वो ऑलमोस्ट लगेंगे कि ये पेंटेड है, पेंट किए हुए हैं और इसमें जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा डेंस है। और चलिए हम लोग एक लिस्ट को प्रिपेयर करते हैं जहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो स्पार्सली पॉपुलेटेड मीन्स कम पॉपुलेशन वाला है, फिर एक मॉडरेटली पॉपुलेटेड मीन्स उसमें न ज़्यादा कम न ज़्यादा है और एक तीसरा हम लोग का डेंसली पॉपुलेटेड मीन्स उसमें हेवी पॉपुलेशन है। कौन से स्टेट में और कौन से यूनियन टेरिटरीज में है हम लोग उसके लिए एक लिस्ट बनाएंगे। एंड यहाँ पे आपका मैप दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन 2001, आपका 2001 का ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है पीपल का। ओके वेल, चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर होगा। तब तक के लिए इस चैप्टर का इंटेक्स क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें और साथ ही साथ इस चैप्टर को पढ़ने और समझने का प्रयास करें। That's all for today. Thank you everyone.